In today's class, we will solve question number 2 of exercise 3.3. Form the pair of linear equations in the following problems and find the solution by the elimination method. Actually, here all the questions are word problems. So, from the statement, you have to form pair of linear equations and then elimination method से उसे solve करना है. So, let's see the first one. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? Okay, so we have to find the fraction. Fraction means we should know a numerator and we should have a denominator. So let's assume, let the numerator be equals to x and let the denominator be equals to y. So the fraction will become x over y. So let's see the first condition given in the question. If we add 1 to the numerator, okay, so if we add 1 to the numerator, x plus 1, and subtract 1 from the denominator और डिनोमिनेटर में से -1 किया जाए तो the fraction reduces to 1. तो fraction क्या हो जाता है 1. ठीक है. अब now here we don't have any denominator, तो अब यहाँ 1 लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई से we will get x plus 1 is equals to y minus 1. x जब ये y इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -y -1. Now this +1 will move to the other side और हो जाएगा -1. So x minus y is equals to -2. ये हो गई हमारी equation 1. Done? Okay, now let's see the second condition in the question. It becomes 1 by 2. What becomes 1 by 2? Fraction. Fraction हो जाता है कितना? 1 by 2. कब होता है? If we only add 1 to the denominator. अगर हम सिर्फ denominator में 1 add करें तो x upon y plus 1. तो क्या किया हमने? सिर्फ denominator में 1 add किया. तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1 by 2. Now cross multiply. So 2 into x is 2x is equals to 1 into y plus 1. कितना हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो y plus 1. So we will get the second equation 2x minus y is equals to 1. ये हो गई हमारी second equation. So we have formed a pair of linear equations. Now we have to solve it by elimination method. एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है x या y किसी भी एक टर्म को हमें क्या करना है सेम करना है. तो देखो इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी विल गेट 2x minus 2y is equals to -4. और सेकेंड इक्वेशन तो हमारी ऑलरेडी है 2x minus y is equals to 1. तो अब 2x सेम है बट वी कैनॉट कैंसिल, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट. सब्ट्रैक्ट करने पर ही कैंसिल होगा प्लस एंड माइनस और ये सभी साइन चेंज हो जाएंगे. सो -2 + 1 विल बी -y इज इक्वल्स टू -4 - 1 कितना हो जाएगा -5. माइनस माइनस विल गेट कैंसिल. y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5. ठीक है. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो x -5 इज इक्वल्स टू -2. सो x इज इक्वल्स टू -2 + 5. x इज इक्वल्स टू -2 + 5 इज 3. तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3. तो इसका मतलब न्यूमरेटर कितना है 3 आ गया और डिनोमिनेटर y आ गया हमारे पास 5.
तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा हमारा, जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाए उसी फॉर्म में यू हैव टू राइट द आंसर. सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x upon y, that is 3/5. ये है हमारा फ्रैक्शन. Clear? Let's move to question number 2. It's given 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो यहाँ पे एजेस पूछी हुई है. तो जब भी एज वाले सम्स आते हैं ना, तो नॉर्मली दो लोगों की जिनकी एज दी है उसमें कंपैरिजन होता है. तो हाउ ओल्ड, पहले तो हम नूरी और सोनू की एज को एज्यूम करते हैं. तो लेट द present age of Noori be x years. ठीक है. इसी तरह let the present age of Sonu be equals to y years. ठीक है. अब let's see the condition in the question. 5 years ago मतलब 5 साल पहले. तो फर्स्ट केस क्या है, of 5 years ago, मतलब दोनों की एज में से -5 हो जाएगा, क्योंकि 5 years ago है. पहले क्या हुआ था, नूरी की एज कितनी थी, thrice as old as सोनू. thrice means 3 times. किसके, सोनू के. तो सोनू क्या है, y-3, तो thrice. तो नूरी की एज कितनी हो गई, thrice time as old as सोनू. So it will be x minus 5 is equals to 3y minus 3, 5s are 15. X minus 3y is equals to minus 15 plus 5. So x minus 3y is equals to minus 15 plus 5 is minus 10. So this is our first equation. Now let's see the second condition, that is of 10 years later. So let's take the second case, that is 10 years later. What happened 10 years later? Noori will be. So 10 years later, पहले तो हम दोनों में 10 years add कर लेते हैं. ठीक है. नूरी विल बी, नूरी कितनी होगी, नूरी क्या है, x plus 10, उसका कहा है वो होगी. नूरी विल बी, नूरी की एज कितनी होगी, तो x plus 10 is equals to twice, मतलब 2 गुना. किसके 2 गुना, as old as सोनू, सोनू से 2 गुना. twice as old as सोनू. ठीक है, समझ में आया. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस. x plus 10 is equals to 2y, 2 into 10, 20. X minus 2y is equals to 20 minus 10. X minus 2y is equals to 10. ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. अब देखो, इसको एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है x और x की वो ऑलरेडी इक्वल है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों इक्वेशंस. x minus 3y is equals to minus 10 and x minus 2y is equals to 10. अब now change the sign. ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस. दिस विल बी कैंसल. तो 3 minus 3 plus 2 is minus y is equals to minus 10 is minus 20. माइनस माइनस विल गेट कैंसिल. सो y हो गया 20. तो y 20 मीन्स किसकी एज आ गई हमारे पास, सोनू की आ गई, 20 years. ठीक है. अच्छा, अब क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो. तो इक्वेशन 1 क्या थी, 3y is equals to minus 10. So substituting y is equals to 20 in this equation, we will get x minus 3. 20 is equals to minus 10. So x minus 60 is equals to minus 10. X is equals to minus 10 plus 60.
and x is equals to 50. So x means Noori. तो नूरी की एज कितनी हो गई? 50 years. So in the end, you will write the way they asked you. How old are Noori and Sonu? So the present age of Noori is 50 years and that of Sonu is 20 years. Clear? Okay. Now let's move to next question. Question number 3. The sum of the digits of a two-digit number is 9. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. Okay, this is a very important question. ऐसे questions exam में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है? Before we start solving the question, let's understand the concept. यहाँ पहले देखो. Think कि I have a number. Like if I have a number 54, ठीक है? 54 is a number और इस नंबर में 2 डिजिट्स हैं, ठीक है? कौन सी डिजिट है? एक है 5, एक है 4. जो ये 4 नंबर वाली डिजिट है, जो 4 डिजिट है, दैट इज एट वंस प्लेस. और ये जो 5 डिजिट है, सेकेंड डिजिट है, ये है टेंस प्लेस पे. Done? We have done in the lower classes. Ones, tens, 100, 1000 and so on. ठीक है ना? तो why I am telling you this? That remember, ये जो पूरा 54 है, इसे हम बोलेंगे नंबर. और ये जो बीच में 2 नंबर्स हैं, 5 और 4 है, इसको हम बोलेंगे इस नंबर के डिजिट्स. ठीक है? तो कितने डिजिट्स हैं इस नंबर में? 2 डिजिट्स हैं इस नंबर में. ठीक है? अब इसको अगर मैं एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखूं, हाउ विल आई राइट? आई विल राइट 50 प्लस 4, मुझे 54 मिलेगा. ऐसा क्यों लिखा मैंने? बिकॉज 5 इंटू 10, क्योंकि 5 टेंस की प्लेस में है, एंड 4 इंटू 1, क्योंकि 4 वंस की प्लेस में है. सो दिस इज हाउ आई कैन राइट दिस 2 डिजिट नंबर. ओके, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम. 72. व्हाट इज 72? 72 इज अ नंबर. कितने डिजिट्स हैं इस नंबर में? देयर आर 2 डिजिट्स. द फर्स्ट डिजिट 2 is in ones place and the 7, that is the second digit, is in the tens place. So how can I write this in expanded form? I can write 7 into 10 plus what? 2 into 1. क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसको अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक नंबर है एक्स वाई, इसके 2 डिजिट्स हैं, एक x डिजिट है, एक y डिजिट है. तो जो y डिजिट है, इट इज इन द वंस प्लेस, और जो ये x डिजिट है, इट इज इन द टेंस प्लेस. तो हाउ विल आई राइट दिस इन एक्सपैंडेड फॉर्म? तो x इंटू 10 प्लस y इंटू 1. तो इसको किस फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ? हाउ कैन आई राइट दिस? आई कैन राइट इट एज 10x प्लस y. तो रिमेंबर दिस फॉर्मेट. जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए डिजिट्स वाले, नंबर वाले, तो रिमेंबर द नंबर जो आप एज्यूम करोगे दैट विल ऑलवेज बी इन दिस फॉर्म, 10x प्लस y. कैसे नंबर्स की? 2 डिजिट नंबर की ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी. ओके, अच्छा, अब इस क्वेश्चन में एक और चीज समझने वाली है कि अगर मैं इस 54 को रिवर्स्ड फॉर्म में लिखूं, रिवर्स्ड फॉर्म में, बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स. ठीक है, जैसे 4 जो है, इसको 54 को मैं लिखूं 45. क्या किया मैंने यहाँ पर? आई जस्ट रिवर्स्ड द डिजिट्स. जो वंस की डिजिट थी उसको मैंने टेंस की जगह पे लिख दिया, और जो टेंस के प्लेस में थी उसको मैंने वंस के प्लेस में लिख दिया. तो क्या हो गया यहाँ पर? हियर आई विल राइट 4 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1. सिर्फ डिजिट्स को मैंने रिवर्स कर दिया. तो ऐसे नंबर को बोलते हैं उस नंबर का रिवर्स्ड नंबर. तो अगर मुझे इस फॉर्म में लिखना है रिवर्स्ड नंबर, तो कैसे लिखेंगे हम? तो रिवर्स्ड नंबर हियर, इस नंबर का रिवर्स्ड नंबर क्या हो जाएगा? 10y प्लस x. क्या किया? सिर्फ डिजिट्स को रिवर्स कर दिया. x की जगह y, y की जगह पर x. मीन्स वंस की प्लेस वाला नंबर टेंस में चला गया, टेंस की प्लेस वाला वंस में चले गया. उसे कह देंगे हम रिवर्स्ड नंबर ऑफ द प्रीवियस नंबर. किसी भी एक नंबर का रिवर्स्ड नंबर.
क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ. सो व्हाट डज द क्वेश्चन सेज? लेट्स चेंज द पेन कलर ताकि दोनों मिक्स ना हो जाए. ओके, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9. ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट का नंबर, डिजिट का सम. डिजिट का सम क्या है? कौन से डिजिट? तो पहले तो हम डिजिट से ज्यूम कर लेते हैं. लेट द डिजिट एट वंस प्लेस बी वाई. ठीक है, एंड लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी इक्वल्स टू एक्स. तो देखो, वंस, टेंस, वंस की प्लेस में क्या है? वाई. एक्स की प्लेस में क्या है? सॉरी, टेंस की प्लेस में क्या है? एक्स. तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? एक्स वाई. ठीक है, लेकिन इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो लेट्स राइट हियर द प्रेजेंट नंबर, द नंबर विल बिकम, कैसे होगा? इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो, एक्स इंटू 10, 10x प्लस वाई इन द वंस प्लेस, सो वाई. और यहीं पे लेट्स राइट द रिवर्स्ड नंबर ऑल्सो. Reversed number, yeah, you can write the number we get after reversing the digits. So it will be 10y plus x. हो गया? क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब हम बनाते हैं इक्वेशंस. तो फर्स्ट कंडीशन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2-digit नंबर इज 9. सम ऑफ किसका सम? डिजिट्स का सम. तो हमने कौन से दो डिजिट्स ली हैं? x एंड y. तो इनका सम x प्लस वाई कितना है? 9. ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. सिंपल है, इजी है. ओके, नाउ लेट्स गो टू द सेकंड कंडीशन. ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर. अब नंबर की बात हुई है, पहले डिजिट की बात हो रही थी, अब नंबर की बात हुई है. कौन सा नंबर? ये वाला नंबर. किसका कितना टाइम्स? 9 टाइम्स. टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन. 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर. तो यहाँ लिखते हैं हम 9 टाइम्स, ये नंबर जो है हमारा क्या है? वो नंबर 10x प्लस वाई इज, आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, वर्ड प्रॉब्लम में इज का मतलब ले लो इक्वल टू. इज, ठीक है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट. ये 2 टाइम है उस नंबर के जो डिजिट्स को रिवर्स करने से मिला. कौन सा नंबर रिवर्स करने से मिला हमें? ये वाला नंबर. सो दैट इज 10y plus x. It's as simple as this. Right? Okay, now let's solve the equations and इसको सॉल्व करके हमें सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी. सो दिस विल बी 90x plus 9y is equals to 20y plus 2x. So 90x, ये 2x जब उधर जाएगा तो हो जाएगा -2x plus 9y और -20y equals to 0. So 90 minus 2 is 88x minus 11y is equals to 0. Now by looking at the equation, it's very clear कि हम यहाँ से 11 common ले सकते हैं, or you can divide the whole equation by 11. So what we will get? 8x minus y is equals to 0. This is our second equation. So we got a pair of linear equations. तो हम यहाँ लिखते हैं इसको, दोनों equations को. x plus y is equals to 9 and 8x minus y is equals to 0. अब देखो इस इक्वेशन को देखो, बड़ी क्लियरली यू कैन सी द सेकेंड टर्म y सेम है ना? फर्स्ट इक्वेशन में भी y प्लस, यहाँ पे प्लस y है, नीचे माइनस y है. साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जैक्टली कैंसल हो रहे हैं. यू कैन इजिली एलिमिनेट इट. ठीक है, अब यहाँ पे 8 प्लस 1 कितना हो गया? 9x is equals to 9. So x is equals to 9 over 9. तो x की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पर 1. Now substitute this value of x in equation 1. So 1 plus y is equals to 9.
y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1, y इज इक्वल्स टू 8, तो y की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, तो ये हो गया आपका दोनों डिजिट्स, एक डिजिट आ गई x। अब देखो वंस और टेंस, आपने वंस की प्लेस में क्या अज्यूम किया था? वंस की प्लेस में हमने अज्यूम किया था y, तो क्या है y आपका 8। और टेंस की प्लेस में अज्यूम किया था x की वैल्यू क्या है 1, तो हमारा नंबर क्या आ गया? द रिक्वायर्ड नंबर इज 18। ठीक है, आप दूसरी तरह से भी चेक कर सकते हैं। ये जो नंबर आपने लिया था ना 10x प्लस वाई, इसी नंबर को आपने लिया था ना, दिस इज द नंबर। क्या नंबर लिया था? 10x प्लस वाई। इसमें डाल के देखते हैं। 10 into x is 1 plus y is 8। ये क्या हो गया? 10 plus 8 कितना नंबर आया? 18। So the required number is, two-digit number is 18. I hope it's clear. And we can move now to next question, that is question number 4. So let's see what it says. Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and rupees 100 she received. मतलब कि मीना बैंक से 2000 रुपीस निकलवाने गई है। उसने कहा कि शी वॉन्ट्स इट ओनली 50 और 100 के नोट चाहिए उसको। उसको 10 के, 500 के या और किसी नोट और किसी भी नोट नहीं चाहिए, उसको सिर्फ 50 और 100 के नोट चाहिए। ठीक है, और मीना को टोटल नोट 25 नोट मिले। तो आपको फाइंड आउट करना है कि उसको कितने 50 के नोट्स मिले और कितने 100 के नोट्स मिले। ओके, अब यहाँ पर भी यू शुड अंडरस्टैंड फ्यू बेसिक थिंग्स, दैट इज, अच्छा मान लो कि मेरे पास एक 10 का नोट है, आई हैव अ 10 रुपी, और कितने हैं मेरे पास? 10 नोट हैं 10 के, तो मेरे पास कितना अमाउंट हो गया? 100। क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं? चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ थिंक आई हैव अ 50 रुपी, 50 रुपए हैं मेरे पास, और कितने हैं 50 रुपए? मेरे पास मान लो 10 नोट है 50 के, तो मेरे पास कितना अमाउंट हो गया? 500। तो मैंने क्या किया यहाँ पर? मैंने क्या किया? आई मल्टीप्लाई द अमाउंट ऑफ नोट, मतलब 50 का नोट है मेरे पास, इसको किससे मल्टीप्लाई किया? नंबर ऑफ नोट्स, वो 50 के कितने नोट है मेरे पास, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे को क्या मिला? मुझे टोटल अमाउंट मिला, कितने पैसे हैं मेरे पास। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अमाउंट, मान लो मेरे पास 10 का नोट है, और कितने नोट है मेरे पास 10 के? मान लो 5 नोट है मेरे पास 10 के, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 50 मिले, मतलब मेरे पास कितना अमाउंट है? मेरे पास टोटल 50 रुपीज हैं। ठीक है, अब चलो नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, अच्छा उससे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं क्या, हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड 100। तो लेट द नंबर ऑफ, let the total number of rupees 100 equals to x। ठीक है, मतलब उसके पास 100 के कितने नोट हैं? x। इसी तरह द टोटल नंबर ऑफ रुपीज 50 बी वाई, मतलब 50 के कितने नोट है? हाउ मेनी नंबर ऑफ 50 रुपीज, दैट इज y। ये दोनों हमने एज्यूम कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन में क्या कहा है उन्होंने? मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ 2000। तो इसका मतलब उसको टोटल 2000 रुपीज मिले, तो इसका मतलब जब वो 100 एक्स नोट प्लस 50 वाई नोट्स जब दोनों को ऐड करती है, तो शी शुड हैव 2000। क्या किया हमने यहाँ पे? देखो, दिस इज द अमाउंट ऑफ नोट, 100 का नोट कितने? x, मल्टीप्लाई किया
इसी तरह 50 के कितने नोट y, इनको मल्टीप्लाई किया तो टोटल हमारे पास आ गया अमाउंट. Okay, so Abcha, by looking at the equation, it's easily you can say that by dividing the equation by 50, we will get 50 into 2 is 100 plus 50 यहाँ से गया 1 and here okay यहाँ पे करो 2000 divided by 50 0 गया 5 4 20 40 तो यहाँ आ गया 40. ये हो गई हमारी इक्वेशन 1. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स सी इक्वेशन 2. सेकेंड कंडीशन क्या बोला उन्होंने, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल. मतलब जितने नोट्स उसने, टोटल नंबर ऑफ नोट्स की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स उसके पास कितने हैं 25. तो मतलब x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, सभी नोट्स को अगर मैं ऐड करूं तो टोटल नोट्स कितने हो जाएंगे उसके पास 25. ठीक है. अब नाउ वी विल सॉल्व इट बाय यूजिंग elimination method, and in that what we will do, we need the same here. Okay, so this is, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ सो दैट यहाँ पर 2 आ जाएगा तो हो जाएगा 2x प्लस 2y is equals to 25 into 5 is 50. देखो आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ साइन चेंज करके y कैंसिल कर सकते थे. ठीक है, वो सेम ही आंसर आएगा आपका. नाउ चेंज द साइन, दिस 2x एंड 2x विल गेट कैंसल और यहाँ हमारे पास आ गया -y और 40 minus 50 is minus 10. Minus minus will get cancelled. So y is equals to 10. मतलब कि y क्या था हमारा, नंबर ऑफ 50 नोट्स. तो मतलब कि 50 के मेरे पास कितने नोट्स हैं, 10 नोट हैं 50 के. ठीक है. अच्छा, उसके बाद अब सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन योर इक्वेशन 1. जो भी इक्वेशन आपको इजी लगती है उसमें आप डाल दो. तो आई विल राइट इट हियर, x प्लस y की वैल्यू डाली 10 इज इक्वल्स टू 25. मैंने सेकेंड इक्वेशन में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 10 and therefore x is equals to 25 minus 10 is 15. So here it is 15. तो इसका मतलब 100 के कितने नोट्स हैं, 15 नोट्स हैं. गॉट इट. अच्छा, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो आप. हमारी सेकेंड कंडीशन मतलब कि इस कंडीशन के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने होने चाहिए 25. मतलब x प्लस वाई को अगर मैं ऐड करूं तो 25 होने चाहिए. तो x की वैल्यू है 15 प्लस y की वैल्यू है 10 तो टोटल नोट्स कितने आ गए 25. सिमिलरली आप अमाउंट भी चेक कर सकते हो इस वाली इक्वेशन से. दिस वन, इस वाली इक्वेशन से आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और अमाउंट चेक करो. 10 इंटू एक्स, एक्स कितना है 15 प्लस y इन 50 इंटू वाई, वाई कितना है 10, कितना आना चाहिए 2000 तो यहाँ आ गया 1500 प्लस 500 कितना हो जाएगा 0 0 5 5 10 एंड 2 तो अमाउंट भी आ गया 2000. तो दिस वे यू कैन वेरीफाई योर आंसर. Now let's see the last question, what it says. A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. Okay, see this is a similar question of the taxi one we have done in the previous exercise, if you remember. So here also let's understand some basic concepts. Let's say, अच्छा, according to the question उन्होंने कहा है जो 3 days की पेमेंट है वो तो फिक्स्ड है. ठीक है, मान लो 3 days के लिए हम पे कर रहे हैं
10 रुपीज 10। तो आप 1 डे के लिए लो, 2 डेज के लिए बुक बोरो करो या 3 डेज के लिए बोरो करो, आपको कितना पे करना है? 10 रुपीज तो आपको देना ही है। दिस इज द फिक्स्ड रेट। उसके अलावा अगर आप लेते हो, 3 दिन के बाद अगर एक्स्ट्रा डेज आप लेते हो तो आपको पर डे एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी से दैट यू हैव टेकन द बुक फॉर 4 डेज, तो इन 4 डेज में से आप ये 3 डेज तो फिक्स्ड आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो आपने 1 डे एक्स्ट्रा लिया है, इसके अलग चार्जेस हैं। मान लो पर डे आपको 5 रुपीज पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे कितना आपको टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा? ये 3 डेज का तो आपको देना पड़ेगा 10, और ये आपको देना पड़ेगा 1 डे का आपको 5। तो कितना हो गया? 10 + 5 यानी कि ₹15 आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। लेट्स टेक 5 डेज। आपने 5 डे के लिए बुक बोरो की है, तो 3 डेज के लिए तो आपको फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ेगा 10, और उसके अलावा आपने 2 डेज के लिए और लिया है, तो 2 डेज के लिए मीन्स ईच डे 5 मीन्स 2 × 5, वो कितना हो गया? 10। तो आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? 10 + 10 दैट इज 20 रुपीज, ठीक है? अच्छा, अब इसको अगर हम एक्स और वाई की टर्म्स में समझें, ये जो फिक्स्ड अमाउंट आप ले दे रहे हो फॉर 3 डेज, लेट्स टेक इट एज एक्स, और ये जो 5 रुपीज पर डे आप दे रहे हो, लेट्स टेक इट एज वाई। तो इसकी अगर मुझे इक्वेशन बनानी हो तो हाउ विल आई राइट? आई विल राइट द फिक्स्ड प्लस जितने भी आपके यहाँ पे नंबर ऑफ डेज आपने एक्स्ट्रा लिए, दैट इज 2 इनटू वाई, मतलब ये है जो पर डे आपको पे करना पड़ेगा, एंड दैट विल गिव यू द टोटल अमाउंट। यहाँ पर दैट जो आया यहाँ पर 20। बात समझ में आई? ठीक है, लेट्स सी व्हाट्स गिवन इन द सम। So here the library has a fixed charges for first 3 days. तो पहले हम यहाँ assume कर लेते हैं what they asked you the fixed charge and the charge for each day. तो let's say let the fixed charges be equals to rupees X, and that of an additional charges per day be rupees Y. Okay, fine. According to the sum here, the Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days. तो 7 days को आप डिवाइड करो जरा, 3 days हो गया फिक्स्ड, और उसके बाद 4 days हो गया एडिशनल, तो ये हो गया फिक्स्ड, और 4 days इंटू एडिशनल y हमारा जो एडिशनल चार्जेस है। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? x प्लस 4y, कितना पे किया? 27। ये होगी हमारी इक्वेशन 1। Now let's see. Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. तो 5 days को यहाँ पे डिवाइड करके देखो कैसे कैसे फिक्स्ड और वो एडिशनल चार्जेस बनते हैं। 3 days that is fixed, and after 3 days she kept 2 days extra, that is 2y. तो x plus 2y, how much she paid? She paid 21. तो ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हियर यू डोंट हैव टू डू एनी मल्टीप्लाई एनीथिंग, जस्ट चेंज द साइन। कट गया। 4 minus 2 is 2y is equals to 27 minus 21, 7 minus 1 is 6. So y is equals to 6 over 2. 2 3s are 6. So y is equals to 3. ठीक है, अब y क्या था? एडिशनल चार्जेस पर डे। इसका मतलब हर दिन एक्स्ट्रा जो आप लोगे, 3 दिन के बाद जो भी एडिशनल डे लोगे पर डे, यू हैव टू पे रुपीज 3,
because the value of y is 3. Now substitute the value of y in equation 1. So we will get x plus 4 into 3 is equals to 27. X plus 4 3s are 12 is equals to 27. X is equals to 27 minus 12 and x is equals to 15. So that means the fixed charges जो है first 3 days के, that is rupees 15. Clear? बात समझ में आई? So that's all for today. See, after watching the video, you should try to do the sums by yourself. And if you still have any doubt, don't hesitate to write in the comments. And in the next video, we will do all the examples of polynomials. So thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe.